ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕೆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ABS ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರು ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಸೂರಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೈನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಮರ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೈ ಅವರು ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಜಾಕಿರನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत सालों के बाद ये एरिया पे आ रहा हूँ. तो ये एरिया पे सब जो डेवलपमेंट जो करे अल्लाह ताला इनका कामयाब करेंगे. और ABS ग्रुप साथ में है. ABS ग्रुप तो आज मैसूर के अंदर फेमस है. तो उसका वास्ते है जो उनको और भी ताकत है. चौधरी को देखो, ये एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना और यूथ को, नौजवानों को एक एंकरेज देना. तो बिजनेस का लग जाना. तो बिजनेस लेन जो जाता है तो तब बुरा चीज़ें सब कम होता है. उसका वास्ते फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को जाना. तो बिजनेस का तरीका ऐसा डेवलपमेंट को एक दिन बैकग्राउंड दिया तो उनको कामयाब का जरिया होता है. ABS ग्रुप का और फिजा ग्रुप का डेवलपमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇತರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರು ಏನು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 100% ಜಿನ್ಯಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿನ್ಯಾನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೂರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು 10% 20% ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಭಾಳ ಬಡವರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10-20% ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸೈಯದ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. आज मैसूर शहर के वार्ड नंबर 9 केसरे में फिजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएटेड विद एबीएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जो है एक दफ्तर का आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सियासी हालात मौजूद रहे। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से फराज और उमर को फिजा डेवलपर्स एंड लैंड डेवलपर्स के जो ऑफिस आज इब्तदा हुई, इसके वास्ते मैं परखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनसे उम्मीद करता हूँ कि साफ सीधे लैंड का ख़रीदारी कर अच्छे मुनासिब दामों में गौर गरीबां की मदद हुए जैसा अच्छे पैमाने पर बिज़नेस करेंगे को मेरी इनके वास्ते दुआ रहती है। और इंशाल्लाह ये सब कामों में मेरा इनके साथ कोऑपरेशन होता है, हमारी ग्रुप का। वार्ड नंबर 9 केसरे में ही क्यों इफ्तिताह हुई है सर? मतलब ये ऑफिस यहाँ पर ही क्यों है? अब इनके थ्रू मेरे पास कई जगहें इन्होंने ख़रीद कर जो है डेवलप कर रही, जैसा कि आप देख सकती हैं बेंचमार्क के आसपास में और दूसरे भी केसरे के इलाके में जो छोटे मोटे जो जगहें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लायक मुझे सुना थी, तो मैं इनके बिहाफ में ख़रीद कर मैं इनको देता हूँ। तो ये सिलसिले में इंशाल्लाह मेरा इनके साथ हमेशा कोऑपरेशन होता है। हमारा समझ में जैसे चीज़ें कोई भी आए तो, और इंशाल्लाह ये ऑफिस में है हमारा रोज़ाना विज़िट रहती है। क्या भी एक कारोबार बिज़नेस के ताल्लुक़ से कुछ भी क्या भी एक डिस्कशन रहा या कुछ भी एक नतीजे पर आना, तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ कोऑपरेट करूँ। और दूसरे रियल एस्टेट में फ़र्क क्या है सर? सब कॉमन ही चाहिए, जैसा कि आप देख रही गलत जगह में गलत डॉक्यूमेंट्स के बहुत से मामले थे आपके सामने, तो ही वो गिनते गए तो आप देखे जैसा खुसूसन जो हमारे कौम के इलाके ही वो जगह में बहुत से गलत चीज़ें हो रही। अब इनके सोच क्या है तो अक्सर 1-2-3 चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व हो को गलत चीज़ों को सही कर बिकाए। मैं देखे जैसा गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स लिए कलेक्ट करे, किसकी जगह क्या किधर देखे, वो पैमाने पर इन्होंने क्या करे, वो जो गौर गरीब वाले को ख़रीद को जो मजलूमान थे उनके साथ सही इंसाफ करे। सब चीज़ों में देखा, उसमें कहा कि हमारा भी एक कोऑपरेशन था इनके साथ। मैं ऑफिस का मेन मकसद इन्होंने बनाई से ये करने का है, क्योंकि तो इनकी ग्रुप में ऑलमोस्ट एक 50-60 मेंबर हैं। मैं सबके साथ उन्होंने मेरे साथ मीटिंग करे, वो बोले तुम्हारा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह ऐसे गैर गलत चीज़ें कहती रहे तो भी जगह में जैसा कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होती कहते हैं मालूम रहते क्या डॉक्यूमेंट्स था करो कौन की क्या की गलत बना को दे डालती, वैसे चीज़ें की सही कर को उनका हक़ उनको दिला रही, तो उनके हक़ दिलाने में मेरा इनके साथ कोऑपरेशन था। तो आम आवाम को इससे क्या ज़्यादा फायदा होगा सर? जो उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी तक के, उनको क्या उम्मीद दे सकते हैं? अब पूरे मैसूर का तो बता नहीं सकते जी, मैं कम से कम मेरी इनको नसीहत क्या करो बोला तो जितना तुम्हारे आसपास है उसे सही करो। ऐसा तुम ना देख कर दूसरे भी इंस्पायर हो को उनके एरिया में भी गलत होते रहा तो क्या भी नहीं, लीगल वे से जाना, इसमें क्या भी ज़ोर ज़बरदस्ती या कंपटीशन या क्या भी शोर शराबा गैर गलाटा पंचायत ऐसा क्या भी नहीं रहना। कानूनी एतबार से जाकर डॉक्यूमेंटेशन देख कर
और कंसल्ट जो डिपार्टमेंट्स होती वो रब्ता कर को जिनके साथ गलत हुआ है उनको गाइड करेंगे। ये नहीं कि ऐसा कर को बोल को इनो खुद इनो रंदे या दूसरे कौन भी रंदे ये करेंगे। तो मालूमात है इस वाले क्या फ़र्ज़ बनता है, अब ये जगह के बारे में किसी की मालूमात है रियल एस्टेट के बारे में तो उन्होंने दूसरे को मालूम कराना क्या चीज़ कैसी क्या लिए तो कैसा। अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना तो अब मूडा के प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जो मूडा अप्रूव्ड रहती हैं, जो कारपोरेशन अप्रूव्ड रहती हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहती हैं, उसमें लीगल एडवाइस ले लेते हैं। एक लॉयर को एक मिनिमम फीस रहती है उसके तहत लेती हैं। रेवेन्यू में क्या होता है, अक्सर इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते, जैसा कि इनकम्प्रेंस रहता है, ईसी खाते सब नहीं रहते, तो उसमें कौन की लेकर रहता है कौन की बेच को रहता है, उसमें ज़रा चीज़ आती है। उसे डीप जाना रेवेन्यू में जो है जितना सिंपल बिजनेस करने में है मामला उतना डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने में बहुत डिफ़िकल्टी सी उसे मालूमात इनको अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको सब मालूमात है ये बारे में। अक्सर इधर चीज़ा इन्हों करी तो मैं समझती हूँ इनको अच्छी मालूमात है। वैसे चीज़ा इनकी ऑफिस में आए तो इन्हों देख को कानूनी से उसके कानून के थ्रू उनको सही इंसाफ दिला को कानून जो कंसल्ट डिपार्टमेंट रहती है जैसा कारपोरेशन रहता है मूडा रहता है उनको अप्रोच करके गलत हुआ रहा तो गलत दिखा दो, उनके थ्रू जो एक्शन लेना है गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू एक्शन लेना, जैसा पुलिस स्टेशन में। ऐसा नहीं कि कहती भी रहा तो हमें खुद ये कर सकते, राय दे सकती हैं, एडवाइस दे सकती हैं, बाकी जो कारगुजारी रहती है वो डिपार्टमेंट करती है। तो जिस तरह यहाँ पे हुआ है दूसरे इलाकों में अगर नौजवान इन्हीं की तरह सलाहियत लेकर आपके पास आएंगे तो क्या आप उन्हीं की वजह से नहीं वो वास्ते इंशाल्लाह 24/7 में इनकी खिदमत में हाजिर हूँ इंशाल्लाह। सर एनआर क्षेत्र में एक और बात भी आई है आवाम के दरमियान में, लैंड माफिया बोलकर सवाल उठते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, लैंड माफिया इसको जो है लैंड माफिया दूर किस तरह किया जाता है आवाम की जहनों से। लैंड माफिया को अब तफसील में गए तो जो इलीगल तरीके से लैंड की डील करती है उनको लैंड माफिया बोलते जी। इलीगल तरीके से जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट रहता है उसके तहत जो बिजनेस करती है उसे लैंड माफिया बोलते हैं। लीगल वे में अच्छे पैमाने पर बिजनेस करे जाए। हमारे बड़े बड़के की उन्वानों में रिवायत में भी है सही तरीके से ज़रा स्लो रहती तरक्की, आड़े तिड़े चीज़ों से फास्ट मिलती है। अगर ये जो तरक्की स्लो तरीके से जो होती है वो हमेशा हमेशा वास्ते तय रहती है। जो आड़े तिड़े तरीक़े से तरक्की होती वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होती हैं। आपने देखी बहुत से मिसाल ही रिक्वेस्ट क्या करो बोले तो कौन की क्या की बेयर करने वाला होता है लॉस। अब बिजनेस में जैसा प्रॉफिट लॉस का मसला रहता है जिन्हें बेयर कर सकता लॉस वैसे का एक ज़रा सामने पीछे बात परवानी। इसमें अक्सर या रेवेन्यू चीज़ा में क्या रहता है गौर गरीमा मजलूमा इनो रहती से उनको उनके जो उनकी मेहनत का उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी को काट को ज़रा ज़रा को जमा को सब ला कर देखो रहते हैं। उनको सही तरीके से उनको नॉलेज देकर सही चीज़ दिलाना उनको उनकी कैपेसिटी के तहत, तो इसका अजर यहाँ भी मिलता है इंशाल्लाह, हशर में भी इंशाल्लाह इसका अजर मिलता है। आखिरी सवाल है, फिजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में जो है यकीन कर यहाँ पर पूरे एतमाद के साथ अगर आपको पैसे देकर ज़मीन ले सकती 100% गारंटी। ये गारंटी का मसला जो है आपको जैसा मालूम होना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज लेना। मेरी प्रॉपर्टी रही तो मैं मेरी अच्छी प्रॉपर्टी करूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी बात नहीं बता रहा हूँ जनरल। तो आदमी भी क्या करना, एक से फर्स्ट ओपिनियन सेकेंड ओपिनियन करती, इसके ताल्लुक से रियल स्टेट के एक्सपर्ट लायर्स रहती, उनको जाकर रब्ता करना। कोई भी अपनी चीज़, मैं मेरी खुद की चीज़ बेच लूँगा तो बोले तो मैं मेरी चीज़ सही है गलत है मैं जो दे रहा हूँ वो लायर ही बता सकता था। अब हमारे रिलेशनशिप में कौन हमारे पर भरोसा करे तो हमें उनके भरोसे को तोड़ने नहीं देना, उनके वास्ते सही करके देना। जो आप सवाल उठाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल उठाए। मैं इसके ताल्लुक से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं गरीब आवाम रहंदे या कोई भी मिडिल क्लास के रहंदे या बड़े रहंदे, सस्ते के चक्कर में गफलत में आकर सामने बेचने वाले का अहदा पोजीशन देखकर मैं खुद रहा भी जगह पर भरोसा करो न को, डॉक्यूमेंट्स लो, डॉक्यूमेंट्स को डीप जाओ। एक ओपिनियन के बजाय रेवेन्यू के बारे में तो मैं राय ये देता हूँ, एक ओपिनियन के बजाय दो ओपिनियन लो। सेकेंड ओपिनियन भी उसमें कौन सी बेहतर रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स कम रहती हैं, वो मुकम्मल हुए तक खरीदो ना। कोई भी ऑफिस अंदर ऐसा हमारे चाहने वाले हैं बहुत ऑफिस आई, ये हमें खुसूसी ऑफिस की रखेंगे और बोले तो हम ख्यालात ग्रुप है
हमारे भाइयाँ जो ही ऑफिस खोली, मेरी जो सोच है वैसी सोच रखने वाले, क्या भी चीज़ को डीप जाना, डॉक्यूमेंट्स में क्या थी भी कम से रहा तो कंसल्ट डिपार्टमेंट में जाको उसका रब्ता करको उसका सही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करको उसे अच्छी फाइल बना को सही तरीके से सेल करो को मेरी इनके वास्ते राय। तो आवाम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सस्ते के चक्कर में मुसीबत में जाओ को, हमारे मेहनत का पैसा एक बार वहाँ चलेगा तो मैं अब मेरा पोजीशन बढ़ा, मैं जब खुद किसी के अहदे ही ऐसा देख को मंजन में लेना सो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख को लेना सो, मेरी एक आवाम से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर खरीदने वालों को जिसके पास ताकत है वो आप बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं। सर कई लोग ऐसे हैं जो किस्तों में उम्मीद लगाए बैठेंगे, अगर हम थोड़ी अमाउंट में किस्तों पर अगर कुछ सहूलत मिले तो ऐसा कुछ है सर यहाँ पर? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिजा डेवलपर्स जो ही बहुत से लैंडर लेकर आकर ही, अब हमारे पास एक ऑलमोस्ट एक 10-12 प्रपोजल्स ही, अगर वो मुझे सही दिखा तो मैं इस पर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट कराया तो इंशाल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरे तरफ से जो रहता है मैं इनको तो इनको भी मेरी एक राय रहती है, इंशाल्लाह इन्हों भी मिनिमम कीमत में लेकर कम मुनाफा रखो और गरीबान के वास्ते ये ऐसी एक स्कीम लाने आने वाले दिन मैं इनके साथ कोऑपरेट करूँ। आप ही की वार्ड में जो है आप ये दफ्तर में इफ्तिताह कर रहे हैं, बड़े आला पैमाने पर बहुत बड़े सियासतदान सब आए थे, इस ताल्लुक से क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफिस केसरे में हमें ओपन कर को ही पहले तो अल्लाह, बाद में अब्बास भैया जितने भी इधर आको ही सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। आपका मकसद क्या है दफ्तर खोलने का? अच्छा एक बिजनेस करेंगे कर को, ऐसा अब्बास भाई एक नसीहत करे, ऐसे वैसे इसमें जौना को बिजनेस करो, बिजनेस लाइन में होकर को बोले वही सबसे ओपन करे। तो आप इसका टाइमिंग बता दीजिए। 9 बजे से लेकर 8 बजे तक भी ओपन रहती है। वन ऑफ द मेंबर हूँ फिजा डेवलपर्स का, और मेरा एसोसिएशन अब्बास भाई के साथ बहुत सालों से है, 30-35 साल से, मैं बचपन के दोस्ता हैं। जो फिजा डेवलपर्स में जो भी इन्वेस्ट करती है, मेरी अपील है इट इज़ वेरी सेफ। और हमारी लीगल टीम है कि जितना भी लाइजनिंग वर्क है लीगल ओपिनियन होना, पूरा हमारे लायर साहब हैं इन मोहन कर को, उनकी एक टीम है, टेक्निकल टीम है लाइजनिंग को हमारी, और खाते से लेकर टिल्ड पूरा हमेज कर को देती। जो कस्टमर लिया हमारे पास से, हमें फाइनल खाते तक भी उनका प्लान भी सैंक्शन करा को देती, बिल्डिंग बनना वो हमें स्टेज को ला को देती। किसी किस्म का कोई भी नहीं कोई नहीं मसला नहीं पेश आता। और जैसे आवाज भी बोले डबल ओपिनियन लेना, हमारे पास एक ओपिनियन है, बाहर भी एक ओपिनियन ले सकती हैं, जो भी कस्टमर खरीदती इत्मीनान के साथ खत्म बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ನಮ್ಮ ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ರಮ್, ಒಂದು ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರ ಮಗ ಉಮರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫರಾಜ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫಿಜಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇವ್ರುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೇರಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.